آئے زینب آئے زینب آئے حسین آئے زینب آئے زینب آئے حسین زینب کا وقت عصری نوبہار دشت میں زینب کا وقت عصری نوبہار دشت میں اماں تیرا حسین اکیلا ہے دشت میں زینب کا وقت عصری نوبہار دشت میں زینب کا وقت عصری نوبہار دشت میں جیسے تھی تم کو آس عباس مر گیا ہم شکل مصطفیٰ بھی جہاں سے گزر گیا تنہا جوان کا لاشا اٹھایا ہے دشت میں اماں تیرا حسین اکیلا ہے دشت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشون أحدا إلا الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھ دیں ذرا. شکریہ حضرت. ایک مطلب ہے چند اشعار ہیں، یہ بھی سماعت فرمائیں گے حضرت؟ کیا ہے جی؟ ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ جب کبھی تم گردش دوران سے گھبرایا کرو، کہ جب کبھی تم گردش دوران سے گھبرایا کرو، رے پرچم عباس کے سائے میں آ جایا کرو، کہ جب کبھی تم گردش دوران سے گھبرایا کرو. یہ بھی شعر دیکھیں گے. کہ جب کبھی پیدا ہو دل میں خواہش خلد بری، کہ جب کبھی پیدا ہو دل میں خواہش خلد بری، مجلس شبیر میں آیا کرو جایا کرو. کہ جب کبھی پیدا ہو دل میں خواہش خلد بری، مجلس شبیر میں آیا کرو جایا کرو. خود بخود فکر و عمل کی تربیت ہو جائے گی، کہ خود بخود فکر و عمل کی تربیت ہو جائے گی. ارے اپنے بچوں سے علم غازی کا اٹھوایا کرو، اپنے بچوں سے علم غازی کا اٹھوایا کرو. اور رزق میں وسعت ملے گی، برکتیں بڑھ جائے گی، کہ رزق میں وسعت ملے گی، برکتیں بڑھ جائے گی. حاضری یہ حضرت عباس دلوایا کرو، حاضری یہ حضرت عباس دلوایا کرو. او حبس کے ماحول میں
جب بھی گھٹن محسوس ہو کہ حبس کے ماحول میں، جب بھی گھٹن محسوس ہو، خوشبوئے ذکر علی سے گھر کو مہکایا کرو، خوشبوئے ذکر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ کہ حبس کے ماحول میں جب بھی گھٹن محسوس ہو، خوشبوئے ذکر علی سے گھر کو مہکایا کرو، آئے جب مد مقابل وقت کا کوئی یزید، آئے جب مد مقابل وقت کا کوئی یزید، یا حسین ابن علی کہہ کے ٹھکرایا کرو، یا حسین ابن علی کہہ کے ٹھکرایا کرو، اور تم تو خیبر شکن کے ماننے والے سہیل، کہ تم تو خیبر شکن کے ماننے والے سہیل، یا علی کہہ کر ہر ایک مرحب سے ٹکرایا کرو، یا علی کہہ کر ہر ایک مرحب سے ٹکرایا کرو، کہ جب کبھی تم گردش دوران سے گھبرایا کرو، اے پرچم عباس کے سائے میں آ جایا کرو، جب کبھی تم گردش۔ محترم قاری عباس صاحب نے کلام الہی سے تلاوت سے مجلس کا آغاز کیا۔ حضرت جناب قاری عباس صاحب کلام الہی کی تلاوت کر رہے تھے، مجھے بینا بجنوری کا ایک شعر یاد آ رہا تھا۔ بینا بجنوری نے ایک بار غزل میں ایک شعر کہا تھا کہ کلام اللہ پڑھتا جا رہا ہوں، کلام اللہ پڑھتا جا رہا ہوں، میری بینائی بڑھتی جا رہی ہے۔ حضرت کلام اللہ کا بینائی سے بہت تعلق ہے، اور کلام اللہ کا جناب امام حسین سے تعلق ہے۔ کربلا کے بعد شام اور کوفہ کی مسافت میں نیزے پر سر حسین بلند تھا اور قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی۔ ظاہر ہے اس قرآن سے کی تلاوت اگر یہاں نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی؟ اس کے بعد جناب عباس صاحب نے اپنی غزل سے نوازا، اپنی اشعار سے نوازا۔ آئیے حضرات، میں اس آواز کو زحمت دوں گا، اس آواز نے پورے ہندوستان میں اپنی ریشمی آواز کے سائے میں لوگوں کو فدا کر دیا ہے۔ اس آواز نے ایک ڈنکا بجایا ہے، وہ آواز فیض آباد کی ہے، وہ آواز بھلی لکھنؤ رہتی ہے لیکن اس کا تعلق فیض آباد سے ہے۔ میں جناب نایاب فیض آبادی صاحب سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام الہی، اپنے کلام رضا سے ہمیں اللہم صلی اللہ وابستہ ہوں جہاں میں شہ مشرقین سے، وابستہ ہوں جہاں میں شہ مشرقین سے، کٹتی ہے زندگی
بڑے آرام و چین سے، سب کچھ اسی گھرانے کا صدقہ ہے دوستوں، کھانا حسن سے ملتا ہے، پانی حسین سے، کھانا حسن سے ملتا ہے، پانی حسین سے وابستہ ہوں جہاں میں۔ ایک مطلع اور چند اشعار شہزادی زینب کے حوالے سے سماعت والے، کیونکہ وقت بھی بہت ہو چکا ہے، آپ لوگوں کو سننے کے لیے ہم بےقرار تھے۔ بہرحال بس آپ کی پیشخانی، آپ کے استقبال کے لیے یہ پیشخانی، ایک صلوات پڑھ دیا آپ صاحب۔ حضور دیکھیے گا کہ شہزادی زینب کے حوالے سے ایک مطلع، ایک ایک لفظ حامل صد احترام ہے، ایک ایک لفظ حامل صد احترام ہے، زینب حسینیت کی مکمل کتاب ہے، زینب حسینیت کی مکمل کتاب ہے، اور بے لوث چاہتوں کو ملا پے کرے وجود، بے لوث چاہتوں کو ملا پے کرے وجود، زینب ہر ایک دور کے بھائی کا خواب ہے، زینب ہر ایک دور کے بھائی کا خواب ہے، اور دین کی بقا ہے تیری اسیری کا معجزہ، دین کی بقا ہے تیری اسیری کا معجزہ، تو بعد عصر ٹھہرا ہوا آفتاب ہے، بعد عصر ٹھہرا ہوا آفتاب ہے، اور ناجی وہ ہے جو دے گا نکیرین کو جواب، ناجی ہے وہ جو دے گا نکیرین کو جواب،
کتاب ہے، شبیر میرا دین ہے، زینب کتاب ہے، اور اپنے سے کہہ سکے نہ کسی کو بتا سکے، اپنے سے کہہ سکے نہ کسی کو بتا سکے، فتح و ظفر یزید کی گونگے کا خواب ہے، فتح ظفر یزید کی گونگے کا خواب ہے، زینب ہر ایک دور کے بھائی کا خواب ہے، ایک ایک لفظ حامل برابر ہو گیا. ایک سلوات آپ حضرات کو. ترجمہ قرآن کا، ترجمہ قرآن کا، اسے جدا کرتے نہیں، ترجمہ قرآن کا، ترجمہ قرآن کا، اس سے جدا کرتے نہیں، فاطمہ سے ہٹ کے ذکر مصطفیٰ کرتے نہیں، فاطمہ سے ہٹ کے ذکر مصطفیٰ کرتے نہیں، وقت سے آ جاتے ہیں جھولا جھلانے کے لیے، یہ فرشتے ہیں عبادت کو قضا کرتے نہیں، یہ فرشتے ہیں عبادت کو قضا کرتے نہیں، فاطمہ کے نام پر تیار ہو جاتے ہیں یہ، ورنہ آنکھوں میں کبھی ہیرے بنا کرتے نہیں، فاطمہ کے نام سے تیار ہو جاتے ہیں یہ، ورنہ آنکھوں میں کبھی ہیرے بنا کرتے نہیں، ورنہ آنکھوں میں کبھی. شامیوں میں آج بھی عباس کا وہ خوف ہے، بھول کر بھی رخ سوئے
کرب و بلا کرتے نہیں، بھول کر بھی رخ سوئے کرب و بلا کرتے نہیں، اس لیے اصغر ہوئے ہیں دفن قبر شاہ میں، پارے دل کو کبھی دل سے جدا کرتے نہیں، پارے دل سے جدا، پارے دل کو کبھی دل سے جدا کرتے نہیں، جس کو جنت مانگنی ہے مانگ لے بہلول سے، چھوٹے چھوٹے کام مولا سے کہا کرتے نہیں، جس کو جنت مانگنی ہو مانگ لے بہلول سے، چھوٹے چھوٹے کام مولا سے کہا کرتے نہیں، ترجمہ فاطمہ کے نام سے تیار ہو جاتے ہیں یہ، ورنہ آنکھوں میں کبھی ہیرے بنا کرتے نہیں۔ اب اجازت ہے؟ شمیم اصغر عبدی صاحب کے رضا خانے سے آج کی مجلس نشر ہو رہی ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ محترم مظاہر علی رضوی صاحب پروفیسر شیعہ کالج چھولسی آج کی مجلس کو خطاب کر رہے ہیں۔ جناب حیدر فیض آبادی صاحب مائک پہ تھے، جو آپ نے کہا کہ فاطمہ کے نام پہ ہو جاتے ہیں تیار یہ، ورنہ آنکھوں میں آنسوؤں کے ہیرے کے بنتے نہیں۔ حضرت آخری شاعر، آخری ہیرا، آخری آواز، اور وہ آواز جو آپ کی اپنی ہے، اس آواز کو میں آواز دے رہا ہوں، اور اس کا نام ہے ڈاکٹر عالیہ نبی آدمی صاحب۔ ان کا استقبال کرتا ہوں میں ان شعر کے ساتھ کہ فراز دار پہ میسم کا لہجہ ڈھونڈ لیتے ہیں، فراز دار پہ میسم کا لہجہ ڈھونڈ لیتے ہیں، جنہیں جنت بلاتی ہے وہ راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ہمارے زمانہ محو حیرت ہے، ہمارے چشمے بینا پر اندھیرے میں بھی ہم انکم تو مولا ڈھونڈ لیتے ہیں۔ جناب عالیہ نبی آدمی صاحب سے گزارش ہے تشریف لائیں اور اپنے اشعار سے ہمیں نوازیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سے درخواست کروں گا کہ آپ جو ہے سوزخانی میں علی کے نام پہ ایک نعرہ صلوات۔ ظلم کو خود اس کے ہی گھر میں نہتھا کر دیا، ظلم کو خود اس کے ہی گھر میں نہتھا کر دیا، سچ تو یہ ہے پیاس نے دریا پہ حملہ کر دیا، سچ تو یہ ہے پیاس نے دریا پہ حملہ کر دیا۔
اور پاؤں میں دریا شکستے، ظلم رن میں کھلبلی، پاؤں میں دریا شکستے، ظلم رن میں کھلبلی، اس نے بے شمشیر اپنا کام پورا کر دیا، اس نے بے شمشیر ایک نعرہ صلوات۔ اور یہ شعر دیکھیے گا در صاحب اور حضرات، کہ ناز تھا اپنے بڑے ہونے پہ تجھ کو القمہ، ناز تھا اپنے بڑے ہونے پہ تجھ کو القمہ، لے کے غازی نے تجھے چلو میں چھوٹا کر دیا، لے کے غازی نے تجھے چلو میں چھوٹا کر دیا، اب یزید ظلم کو، اب یزید ظلم کا کھل کر کوئی حامی نہیں، اب یزید ظلم کا کھل کر کوئی حامی نہیں، شہ کی مظلومی نے اس کو کتنا تنہا کر دیا، ظلم کو درخواست ہے جناب نایاب بھائی ہاں در صاحب آئیے، تو اس کو غازی میں چلو نے لے کے چھوٹا کر دیا۔ جناب ڈاکٹر آئی نبی آدمی صاحب نے اپنے اشعار سے ہمیں نوازا۔ آئیے ازادہ پیش خانی کا میں نے آخری شاعر ہے آپ نے پیش کیا میں نے۔ آئیے ازاد صوف خانی کے لیے میں جناب نایاب صاحب اور جناب شکیل صاحب کو آواز دے رہا ہوں۔ آزاد صوف خانی کو ایک نیا لہجہ، ایک نیا نہج دینے والے صوف خان ہیں جناب شکیل صاحب اور نایاب صاحب۔ ہندوستان بھر میں جہاں جہاں بھی شیعت ہے، جہاں جہاں حسین والے ہیں، وہاں ہماری سلطانی کرتے ہیں، ان کی آواز کو، ان کلام کو سنتے ہیں۔ آزاد کلام ان کا نہیں ہوتا، ہم جانتے ہیں، ان کلام پہ انتخاب ان کا ہوتا ہے، انتخاب ایسا ہوتا ہے کہ یہ پکڑ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ کلام جو شاعر شعر کرنے کے بعد بھول جاتا ہے، اگر سوچتا ہے کہ میں نے وہ شعر کہا تھا، وہ ان کا انتخاب ہوتا ہے۔ میں ان کا جناب انداز سیدھا پوری صاحب کے اشعار کے ساتھ ان کا انداز کرتا ہوں کہ میں نے کہا طبیب سے سینے میں درد ہے، میں نے کہا طبیب سے سینے میں درد ہے، نسخے میں اس نے ماتم شبیر لکھ دیا۔ اٹھا سوال سب سے بڑا کون ہے شہید، کاغذ پہ میں نے اصغر بیشی لکھ دیا۔ جناب شکیل صاحب اور جناب نایاب صاحب کو میں صوفخانے میں مدعو کرتا ہوں تشریف لائیں اور اس مجلس اعزاں میں کوئی وقار بخشیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس سے پہلے جناب شہزادہ گلریز رامپوری صاحب کا ایک مطلع اور 3 شعر حاضر ہیں، سماعت فرمائیے، ایک صلوات اور بھیجیے بر محمد والے عام حالات میں چپ رہتے ہیں کم بول
چپ رہتے ہیں کم بولتے ہیں، ہو صدا گوش پر آواز تو ہم بولتے ہیں۔ لاکھ طوفان گزر جائیں، لاکھ طوفان گزر جائیں نہیں بولتے ہم، وقت آنے پر مگر پیش ستم بولتے ہیں، عام حالات میں چپ رہتے ہیں کم بولتے ہیں۔ دشت پرخار سے گزرا ہے، دشت پرخار سے گزرا ہے کوئی آب لاپا، راستے چپ ہیں مگر نقش قدم بولتے ہیں، عام حالات میں چپ رہتے ہیں کم بولتے ہیں۔ یہ تلاوت کی صدائیں، یہ تلاوت کی صدائیں، یہ اذان کی آواز، ایسا لگتا ہے کہیں اہل حرم بولتے ہیں، عام حالات میں چپ رہتے ہیں کم بولتے ہیں۔ کبھی بشر سر ممبر نہ بے سبب بولے، کبھی بشر سر ممبر نہ بے سبب بولے، زباں پر ذکر نبی اور علی ہو تب بولے، کبھی بشر سر ممبر نہ بے سبب بولے، زباں قلم ہوئی جاری رہی ثناء علی، زباں قلم ہوئی جاری رہی ثناء علی، فراز دار پمیسم کے چشم لب بولے، کبھی بشر سر ممبر نہ بے سبب بولے۔ یہ شعر خاص طور سے سماعت فرمائیے، دیکھیے گا لسان حق ہے علی کی، زباں تو لازم تھا، لسان حق ہے علی کی، زباں تو لازم تھا، خدا بھی لہجہ حیدر میں ایک شب بولے، کبھی بشر سر ممبر نہ بے سبب بولے، علی کی چلتی ہوئی ذوالفقار ہے خطبہ،
فقار ہے خطبہ ہے کون سامنے بنتے علی کے اب بولے کبھی بشر سر ممبر نہ بے سبب بولے. قافیہ خاص طور سے سماعت فرمائیے گا. دیکھیے کہ جناب یہی تھی مرضی معبود بر سر دربار یہی تھی مرضی معبود بر سر دربار علی کے لہجے میں اس وقت زین اب بولے کبھی بشر سر ممبر نہ بے سبب بولے. حسن حسین کی سیرت سے مل رہا ہے سبق حسن حسین کی سیرت سے مل رہا ہے سبق کہاں خاموش رہا جا اور کب بولے کبھی بشر سر ممبر نہ بے سبب بولے. عزائے شاہ کو بدعت بتا رہے ہیں لئیں عزائے شاہ کو بدعت بتا رہے ہیں لئیں یہ ان کا خون نجس اور حسب نسب بولے کبھی بشر عزائے شاہ کو بدعت بتا رہے ہیں لئیں عزائے شاہ کو بدعت بتا رہے ہیں لئیں یہ ان کا خون نجس اور حسب نسب بولے کبھی بشر سر ممبر نہ بے سبب بولے. بجھی جو شمع تو نور حسین پر یکجا بجھی جو شمع تو نور حسین پر یکجا نثار ہونے کو پرواں نے سب کے سب بولے کبھی بشر سر ممبر نہ بے سبب بولے اسے طلب سے سوا کرتے ہیں عطا سجاد اسے طلب سے سوا کرتے ہیں عطا سجاد کہ اس کے پہلے کوئی سا ہے بے طلب بولے کبھی بشر سر ممبر نہ بے سبب بولے. فاتحہ.
شب ایمان میں زمان کھینچتے تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں زمین مول لی ہے مزاروں کی خاطر زمین مول لی ہے مزاروں کی خاطر زمین پر شہر دین شان کھینچتے ہیں کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا کلیجے سے باسنا کھینچتے ہیں پکاری سکینہ دہائی ہے بابا پکاری سکینہ دہائی ہے بابا ستم گر میری بالیاں کھینچتے ہیں عجب حال ہے دکھ ترے فاطمہ کا عجب حال ہے دکھ ترے فاطمہ کا رضا سر سے زارساں کھینچتے ہیں کٹی جاتی ہیں گردنیں بیویوں کی کٹی جاتی ہیں گردنیں بیویوں کی رسن کو جوئی زارساں کھینچتے ہیں شبیہ ایمان میں زمان کھینچتے ہیں نایاب صاحب اور جناب شکیل صاحب نے سوس خانی کی مچیا خانی کی منیش حسین کو وقار بخشا. آپ نے سنا کہ سوس خانی اور مچیا خانی کا لہجہ ایک نہج ہے.
अज़ाज़ खिताबत के लिए अब मैं ख़तीब अहले बैत जनाब सैयद मज़ाहिर अली रिज़वी प्रोफेसर शिया कॉलेज लखनऊ से इल्तिमास हर्फ़ इल्तिमास ले चलता हूँ। और ज़ाहिर है कि मेरी हैसियत नहीं कि मैं इनके खिलाफ शेर पढ़ पाऊँ, लेकिन बहरहाल एक तरीक़ा है, हम शेर पढ़ रहे हैं कि उस घर की ईंट ईंट से राज़ी खुदा नहीं, उस घर की ईंट ईंट से राज़ी खुदा नहीं, इस घर में जान नमाज है फ़र्श अज़ा नहीं। आइए हज़रात जनाब सैयद मज़ाहिर अली साहब को खिदमत कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन शफीइल मुज़निबीन रहमतन लिल आलमीन अल मुलक़्क़ब बिताहा व यासीन महबूब रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमूना शैअन व जअल लकुमुस समअ वल अब्सारा वल अफ़इदता लअल्लकुम तशकुरून। सलवात पर मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मोहतरम सामिन किराम, क़ब्ल इसके मजलिस का आगाज़ किया जाए, मेरी गुजारिश है कि आप लोग अपने मोबाइल ऑफ़ कर दें और इतनी देर मैं आपसे महव गुफ्तगू रहूँ, आप लोग मेरी तरफ हमातन कुछ कहें। और ज़ाकिर के लिए उस वक्त बड़ा मसला गड़बड़ हो जाता है कि जब ज़ाकिर कुछ कहने जा रहा हो और किसी की रिंग बजे, घंटी बजे और वो उधर सलावत पढ़ें पर मोहम्मद। मोहतरम सामिन किराम, अज़ीज़ान गिरामी, दोस्तान अज़ीज़, अकाबिरान मिल्लत, अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, कुरान मजीद की बहुत ही मशहूर व मारूफ़ आय करीमा सूरह नहल की 78वीं आयत है, जिसकी तिलावत का शरफ़ हासिल किया। इसके अंदर मालिक कायनात, खालिक कौन व मकां, हम सब का परवरदिगार, हम सब का मालिक, हम सब का पैदा करने वाला, हम सब को इस दुनिया में लाने वाला इरशाद फरमा रहा है, वल्लाहु अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम। बेशक वो अल्लाह ही है जिसने तुमको तुम्हारी माँओं के बतनों से, पेटों से इखराज किया, किस आलम में पैदा किया, ला तालमूना शैआ, किसी तरह का कोई इल्म नहीं दिया, बेखबर पैदा किया, इलिटरेट पैदा किया, जाहिल पैदा किया, जाहिल मुतलक पैदा किया, निरा कोरा एकदम जाहिल पैदा किया। वजअल लकुमुस समा वल अब्सारा वल अफ़इदता। उसके बाद मशीयत ने, मालिक कायनात ने अपनी नेमतें गिनाना शुरू की। हमने तुम्हें समात अता की, हमने तुम्हें बसीरत अता की, हमने तुम्हारी ज़िंदगी के वजूद के लिए धड़कता हुआ एक दिल अता कर दिया, लअल्लकुम तशकुरून। और इतनी बड़ी नेमतें अता करने के बाद ना हमारी कोई ख्वाहिश है, ना कोई आरज़ू है, ना कोई तमन्ना है, ना कोई हुक्म है, ना कोई आर्डर है, ना कोई ख्वाहिश है, ना कोई चाहत है। सिर्फ इतनी सी बात है कि तुम हमारे शुक्रगुज़ार बंदे बन जाओ। सलावत पढ़ें पर मोहम्मद। बहुत ही मुअद्दिबाना गुजारिश है, आप लोग मेरी तरफ मुतवज्जे रहिए। बहुत ही मुअद्दिबाना, आपसे छोटा हूँ, जसारत करके ये बात कह रहा हूँ। सलावत पढ़ें पर ज़ाकिर के लिए बहुत ही गड़बड़ होता है कि जब ज़ाकिर बोल रहा हो और कुछ लोग आपस में कानों में बातें कर रहे हों। और शरीयत ने भी मना किया है कि जब सलावत पढ़ें
और सलावत पढ़ें बाबा। अज़ीज़ान गिरामी गौर कीजिए, सूरह नहल की 78वीं आयत करीमा है। इरशाद फरमा रहा है वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम, बेशक वो अल्लाह ही है, कोई और नहीं है। आप गलत फहमी के शिकार ना हो जाइएगा। जिसने तुमको तुम्हारी माँओं के बतनों से इखराज किया, पैदा किया, किस आलम में पैदा किया? ला तालमूना शया, किसी तरह का कोई इल्म नहीं दिया, जाहिल पैदा किया, इलिटरेट, बिल्कुल कोरा निरा जाहिल पैदा किया। ये सारे उलूम जितने भी तुमने हासिल किए हैं वो इस दुनिया में आने के बाद हासिल किए। मौलवी बने तो इस दुनिया में आने के बाद, जाकिर बने तो इस दुनिया में आने के बाद, डॉक्टर बने तो इस दुनिया में आने के बाद, प्रोफेसर बने तो इस दुनिया में आने के बाद, इंजीनियर मुहद्दिस बने तो इस दुनिया में आने के बाद। ला तालमूना शया, हमने तो किसी तरह का कोई इल्म तुम्हें नहीं दिया था, जाहिल पैदा किया, बेखबर पैदा किया, लिटरेट। और ये भी जहन में रखें कि हम उठाएंगे भी तुम्हें जाहिल, ये नहीं कि तुम्हें आलिम उठाएंगे जब तुम इस दुनिया से जाने लगोगे। और आप मुशाहिदा करते हैं दिनों रात, सुबह से शाम तक देखते रहते हैं, जब इंसान मंजिल उसकी ज़िंदगी की आगे बढ़ती रहती है तो उसके सोचने समझने की सलाहियत कम होनी शुरू हो जाती है। और बुढ़ापे की एक ऐसी मंजिल आ जाती है कि जब इंसान भूलने लगता है। मशीयत ने पलट के कहा कि हम तुम्हें उठाएंगे भी ऐसा ही। जब उठाएंगे ऐसा और पैदा ऐसा क्या, तो सवाल क्या होगा? कहा कि सवाल जो तुम्हारे लौह पे हमने सब्त कर दिया है वही सवाल होगा। सलावत पढ़ें बर मोहम्मद व आले हैं। वजाल लकुम समा वल अब्सारा वल अफिदता, मालिक कायनात ने अपनी 3 नेमतें गिनाई हैं। हमने तुम्हें आँखें अता की देखने के लिए, हमने तुम्हें कान अता किए सुनने के लिए, और हमने तुम्हारी ज़िंदगी के वजूद के लिए धड़कता हुआ एक दिल अता कर दिया ताकि ज़िंदगी का काफ़िला रवां दमा रहे। इतनी बड़ी नेमतें अता करने के बाद ना हमारी कोई ख्वाहिश है, ना चाहत है, ना आरजू है, ना कोई हुक्म है, ना कोई इस्तमरार है, ना कोई आर्डर है। सिर्फ इतनी सी बात है कि तुम हमारे शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, हमारा शुक्रिया अदा करो। अज़ीज़ान गिरामी, आप गौर करिए, मालिक कायनात ने इंसान को मुकम्मल नेमतों का मुजस्समा बनाया है। मुकम्मल सिर्फ 3 नेमतों का तज़किरा किया है। अगर आप सुबह से शाम तक सिर्फ अपने ही जिस्म को देखते रहें और जिस चीज़ को आप देखेंगे तो उसका शुक्रिया अदा करते हुए नज़र आएंगे। अगर आप बाल देखें तो आपको बात नज़र आएंगे कि आप अच्छे खासे इंसान नज़र आ रहे हैं। जब उसी इंसान के सर से बाल गायब हो जाते हैं तो लोग नाम भूल जाते हैं, कहते हैं कि अरे साहब वो जो फलां गंजा है उसको बुला के देखिए, उससे बात करके देखिए। अज़ीज़ान गिरामी, गौर कीजिए, कसम खुदा की आप तवज्जो कीजिए कि मालिक कायनात ने सिर्फ 3 नेमतों का तज़किरा किया है कि हमने तुम्हें आँखें अता की हैं देखने के लिए, हमने तुम्हें कान अता किए हैं सुनने के लिए, और तुम्हारी ज़िंदगी का काफ़िला रवां दमा रहे एक धड़कता हुआ दिल अता कर दिया है। आपको नहीं मालूम कि मशीयत ने कितनी बड़ी नेमतें आपको अता कर दी हैं, मालिक कायनात ने कितनी बड़ी दौलत आपको अता की है। ये तो आप उससे जाके पूछिए कि जिसके देखने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी हो, और उससे जाके पूछिए कि बताओ कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई ख्वाहिश है, कोई चाहत है, कोई आरजू है, फ़ौरन पलट के कहेगा मौलाना मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मशीयत ने मुझे औलाद दी है, मुझे दौलत दी है, पैसा दिया है, मेरा एक वलवला है, एक जलवा है, मेरी एक शान है, समाज के अंदर लोग मुझे इज्जत से पूछते और जानते हैं। आप सरफराजगंज के अंदर कहीं भी जाइए मेरा नाम लेके दरियाफ्त कर सकते हैं। बस इतनी सी बात है, अगर हो सके तो मेरे देखने की ताकत वापस करा दो। आपको अंदाज़ा हुआ, ये तो वो बताएगा कि जिसके देखने की ताकत ख़त्म हो चुकी हो। आपको क्या मालूम कि कान किसे कहा जाता है? ये तो वो शख्स बतलाएगा जिसके सुनने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी हो। फ़ौरन पलट के कहेगा मौलाना मालिक कायनात ने मुझे सब कुछ दे रखा है, इज़्ज़त है, शोहरत है, पैसा है, औलाद है, सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन अब सुनने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी है। अगर हो सके तो मेरे सुनने की ताकत वापस करा दो। आप क्या जाने कि दिल किसे कहा जाता है? ये तो जाके अल्लामा, ये तो जाके गालिब से दरियाफ्त कीजिए कि अगर 1 2 4 होते तो एक इस गली में बांटता और एक उस गली में बांटता। इतनी बड़ी नेमत अता करने के बाद और आप नहीं जानते कि दिल किसे कहा जाता है, ये तो उससे पूछिए, वो बताएगा। हमारे दोस्त डॉक्टर प्रोफेसर काजिम रजा जैदी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इनको मालूम है कि दिल किसे कहा जाता है। इनकी हरकतें बताएंगी, इनके दिल की हरकतें ये जानती हैं कि जब इंसान को बाईपास सर्जरी के लिए लिटाया जाता है उस वक्त पता लगता है कि कितनी बड़ी दौलत मालिक कायनात ने आपको अता की है। इतनी बड़ी दौलत अता करने के बाद कोई मतालिबा नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, कोई आरजू नहीं, कोई तमन्ना नहीं, सिर्फ
इतनी सी बात है कि तुम हमारा शुक्रिया अदा करते चले जाओ। मशीयत ने पलट के कहा कि हमने तुमको तुम्हारी माओ के बतनों से इखराज किया है और जाहिल पैदा किया है, और गलत फहमी के शिकार ना हो जाइएगा कि हमको माँ बाप ने पैदा किया है। अगर माँ बाप के अंदर ये ताकत होती तो कोई लावलद न मरता, कोई लावलद इस दुनिया से न जाता, और किसी भी डॉक्टर के सामने और मज़ार पे जाने के बाद औलाद की भीख न मांगता। इसका मतलब ये हुआ मशीयत ने इस ताकत को, इस पावर को अपने हाथ में रखा है, किसी के हवाले नहीं किया है कि हम जिसको चाहेंगे जब चाहेंगे औलाद अता करेंगे। अगर हम देने पे आ जाएं तो बुढ़ापे में अता करेंगे। अगर यकीन ना आए तो ज़करिया और यहया का वाक़या पढ़ लीजिएगा। वहाँ तवज्जो नहीं कर रहे हैं। सलावत पढ़िए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप क्या जाने कि मशीयत ने आपको कितना मुकम्मल और कितना कामिल बना दिया है। और इसी के लिए कुरान में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुई है, ऐसने तक़वीम, हमने तुम्हें मुकम्मल बनाया है, कामिल बनाया है। कहीं डाउट नहीं लगाई जा सकती कि यहाँ पे ये कमी छोड़ दी है। ये जो आंखें हैं ये यहीं अच्छी लग रही हैं, अगर थोड़ी सी नीचे आ जाती यकीन जानिए देखने में दुश्वारी पैदा हो जाती। एक नीचे हो जाती, एक ऊपर हो जाती तो इंसान मेरी बातें कम सुनता, फौरन कहते मौलाना की आंखें डिसबैलेंस हैं, इनको महंगा कहना चाहिए। आप कर रहे हैं, तवज्जो फरमा रहे हैं। मशीयत तूने दो ही आंखें क्यों बनाई? अगर तू इन दो का एक बड़ा सा हंडा यहाँ लगा देता, एक बड़ा सा बल्ब यहाँ चिपका देता, हम देखते। मशीयत ने पलट के कहा कि तू समझे ही नहीं, अगर मैं दो लगा देता और वो एक लगा देता दो की जगह, अगर एक खराब हो जाती, कम से कम तेरे पास एक नेमत तो हमारी रहती कि जिसके जरिए से तू इंसानों को देखता रहता। और ये हमने आंखें जो हैं बिल्कुल आज़ाद पैदा की हैं, इन पे कोई हमने पहरा नहीं लगाया, कोई पाबंदी नहीं लगाई है। वो बातें भी सुनिए जो सुनने के लायक हैं, उन बातों को भी सुनिए जो सुनने के लायक नहीं है। मैं आ गया जो मुझे पढ़ना है, यानी कि बिल्कुल आज़ाद हैं। हमने कोई पहरा नहीं बिठा रखा है कि आप गलत देखेंगे फौरन कोई आपकी आंख में सलाई घुसा देगा कि आप गलत देख रहे हैं। नहीं, जो चाहे देखिए, जो दिल में चाहे, जिसको देखना है वो भी देखिए, जो चीजें नहीं देखनी है वो भी देखिए। ये तो हम वहां पूछेंगे कि बतलाओ क्या देखा और क्या नहीं देखा। नहीं तवज्जो कर रहे हैं आप, नहीं कर रहे हैं। ये तो हम वहां पूछेंगे, ये बतलाओ क्या 1.25 लाख के मजमे के अंदर तुमने रसूल के हाथों पे अली को देखा था या नहीं? सलावत पढ़ते पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हम तो वहाँ पूछेंगे कि बताओ 1.25 लाख के मजमे में जब हमारा आखिरी नबी ख़त्मी मर्तबा हामिल कुरान, कारी कुरान, हाफिज़ कुरान, वजह तख्लीक़ कायनात, अगर ये नहीं तो ज़मीन का फर्श नहीं, अगर ये नहीं तो आसमान का शामियाना नहीं, अगर ये नहीं तो ये चांद नहीं, अगर ये नहीं तो ये चांदनी नहीं, अगर ये नहीं तो ये सूरज नहीं, अगर ये नहीं तो ये सूरज की किरणें नहीं, ये नहीं तो ये दरिया नहीं, अगर ये नहीं तो ये फिजाएं नहीं, अगर ये नहीं तो ये कोह नहीं, अगर ये नहीं तो सलसबील नहीं, अगर ये नहीं तो जन्नत नहीं, अगर ये नहीं तो नईम नहीं, ये नहीं तो दुश्मनों के लिए। ये सलावत पढ़िए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हैं तवज्जो फरमा रहे हैं आप? एक और सलावत पढ़ें बर मोहम्मद। एक और हमने तुम्हें कान अता किए हैं, अमा तुम क्या जानो कि कान किसे कहा जाता है? कासिम भाई बैठे रहिए। आप क्या जाने कि कान किसे कहा जाता है? हमने इन पे भी कोई पहरा नहीं बिठाया, इन पे भी किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई है। क्या कह रहे बताओ? ये जो चाहे सुनो, जो चाहे देखो। ये तो वहां पूछेंगे कि 1.25 लाख के मजमे के अंदर जब मेरा आखिरी नबी पुकार के कह रहा था, कानों में आवाज आ रही थी या नहीं? रसूल के हाथों पे अली को देखा था या नहीं? बात आ गई, याद करता चलूं, मेरे मौजू में नहीं है, लेकिन आज बड़ी अहम बात मुझे आपके हवाले करनी है। नौजवानों को मालूम होना चाहिए, सारी किताबों में तिरमिजी हो, मिशकात हो, कोई भी हो, फिक़े अकबर बहुत मजबूत, बहुत बड़ी किताब है, बड़ी मोतबर किताब है फिक़े अकबर। उसके अंदर भी लिखा है कि रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद मेरे 12 जानशीन होंगे, मेरे बाद 12 जानशीन होंगे। मुतवज्जे हैं?
غور فرما رہے ہیں؟ نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 12 جانشین ہوں گے. ہم نے دیکھنے شروع کیے, پڑھنے شروع کیے کہ 12 کون کون ہیں. ہمیں یہ پتا چلا کہ رسول کے بعد علی, علی کے بعد حسن, حسن کے بعد حسین, حسین کے بعد علی, علی کے بعد محمد, محمد کے بعد پھر جعفر, جعفر کے بعد کاظم, کاظم کے بعد علی, علی کے بعد تقی, تقی کے بعد نقی, نقی کے بعد عسکری, عسکری کے بعد نہیں غور کیا آپ نے, پردے والا, وہ جو پردے میں بیٹھا ہے محمد, وہ کہا کہ یہ ہیں ہمارے 12. اب میں نے ان کی کتابوں میں دیکھا, ڈھونڈنا شروع کیا, ان کے 12 کون سے ہیں, پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا میرا مولا علی. توجہ ہے, شاید میں دعوے سے تو نہیں کہہ سکتا, لیکن ان کے 12 کے نام آج آپ کو اس منبر سے بتلا کے جا رہا ہوں. گھر جا کے فیصلہ کیجئے گا کون صراط مستقیم پہ ہے اور کون غلط ہے. فیصلہ کن جملہ کہنے جا رہا ہوں. کہا کون, پہلا, میں نام نہیں لے رہا, دوسرا, تیسرا, چوتھا میرا مولا, پانچواں امیر شام, چھٹا یزید. نہیں توجہ کی آپ نے, چھٹا, چھٹا یزید. ہمارے ہاں چھٹا اصدق الصادقین, سچوں کا سچا. ارے قسم خدا کی, آپ غور نہیں کر رہے, مجلس پڑھوا لیجئے. مجلس مجمع سے نہیں ہوتی ہے, اگر 5 لوگ بھی مجلس سن لیں تو مجلس کامیاب ہے. اصدق الصادقین, سچوں کا سچا. ادھر یزید. یہاں ایک اور بات آ گئی ہے, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب انہی نے مارا ہے اور یہی رو رہے ہیں, یہی آنسو بہا رہے ہیں. چلیے سب مل کے قاتلان امام حسین پہ لعنت بھیجتے ہیں. لعنت کی خوبی یہ ہے, کیا کہہ رہے ہیں, سبحان اللہ, سبحان اللہ. لعنت کی خوبی یہ ہے کہ یہ اپنا مقام خود ڈھونڈتی ہے. بات آ گئی ہے, بات یہیں یاد دلا دیجئے گا اگر میں بھول جاؤں. لعنت کیا ہوا, مباہلے میں نہ مقاتلہ ہوا, نہ مجاہدہ ہوا, کچھ بھی تو نہیں ہوا. کہا کہ آؤ مباہلہ کریں گے, مباہلہ, مباہلہ ہوگا. ادھر سے نبی چلا, کس کو لے کے, کس کو لے کے, نبی آغوش میں حسین, انگلی پکڑے حسن, پیچھے شہزادی, اس کے پیچھے ولیوں کا ولی, کائنات کا ولی. یہ چھوٹا سا قافلہ, ادھر بڑا, ادھر سے 14 بڑے, ادھر سے 5 بڑے. ماں قسم خدا کی, ادھر سے 5 بڑے, ادھر سے 14 بڑے. میں ان کے پاس گیا اور جا کے میں نے دریافت کیا, یہ بتاؤ تمہاری تعداد 14 کیوں ہیں, 13 کیوں نہیں, 15 کیوں نہیں. پلٹ کے کہا آسمانی کتابوں میں حق 14 کے ساتھ ہے. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے اپنے فرضی بنا لیے ہیں, یہ اور بات ہے انہوں نے فرضی بنا لیے. ادھر سے یہ چلے, ادھر سے وہ چلے, دونوں چلے, نصرہ نجران چلے, ادھر سے اہل بیت چلے. ایک چیز اور چلی, ایک چیز اور چلی. تنہا یہ 2 لوگ نہیں چلے, 2 قافلے نہیں چلے, ایک شے اور چلی. اس شے کو کیا کہا جاتا ہے, کیا بات ہوئی تھی کہ آؤ اور آنے کے بعد مباہلہ کریں, جھوٹوں پہ لعنت پہ جائیں. ادھر سے انہوں نے قدم جیسے ہی باہر نکالا, اللہ کی طرف سے لعنت چلی. اللہ کی طرف سے بڑا مشکل مرحلہ ہے. اگر تھوڑی سی سنجیدہ بات ہو جائے تو ذاکر اپنا منہ دیکھنے لگتا ہے. ادھر سے لعنت چلی, ادھر سے یہ چلے, ادھر سے وہ چلے. ان میں آپس میں معاہدہ ہو گیا. انہوں نے جزیہ دے دیا, کہا کہ ایسے آ گئے کہ اگر یہ اشارہ کریں گے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا. لعنت کہاں گئی, کیا لعنت کو اللہ نے واپس بلا لیا؟ جو ایک دفعہ نازل کر دیتا ہے وہ واپس نہیں بلاتا. ہوا اور پانی اپنا مقام ڈھونڈ لیتا ہے. آپ کتنا ہی بند کر دیجئے, آکسیجن آ جائے گی, پانی ادھر ادھر ٹہلتا رہے گا, اپنا مقام ڈھونڈ لے گا. بس لعنت کی بھی یہی خوبی ہے کہ جیسے ہی ادھر سے چلے اس نے اپنا مقام ڈھونڈ لیا. اب جو بھی ان 5 کے مقابلے پہ آ جائے صبح قیامت تک وہی قابل لعنت. ارے قسم خدا کی, یہاں صلوات پڑھیے پر محمد والے محمد. ادھر 6 نمبر پہ یزید. اب سوچئے خلافت کا پیمانہ اتنا گرا, جملے نہیں پہنچ رہے ہیں, خلافت اتنی گر گئی کہ 6 نمبر پہ یزید آ گیا. امامت اتنی مضبوط ہوئی کہ 3 نمبر پہ حسین آ گیا.
तीसरे नंबर पे हुसैन आ गया। इमामत इतनी मजबूत हो गई। फिर यजीद के बाद अब्दुल मलिक इब्न मरवान, नाम याद रखिएगा, यजीद के फौरन बाद अब्दुल मलिक इब्न मरवान हो जाता है। इसके बाद इसके 4 बेटे, पहला बेटा वलीद इब्न अब्दुल मलिक, दूसरा बेटा वलीद के बाद यजीद, यजीद के बाद हिशाम, हिशाम, यानी कि 4 बेटे मुसलसल इसके खलीफा होते चले गए। और 12वें नंबर पे आ गया उमर इब्न अब्दुल अजीज। और उमर अब्दुल अजीज ने आते के साथ ही कहा कि जो अली पे लानत भेजते हो उसे बंद कर दिया जाए। अब थोड़ी सी देर के लिए मेरे साथ रुक जाइए। पाकिस्तान की गलियों में टहलिए, वो तो यहां मौका नहीं मिला लोगों को, वरना यहां भी ये दौर शुरू हो जाता कि जो भी सहाबी को बुरा कहे वो काबिल लानत है, काबिल मजम्मत है। अगर आपने पहले दूसरे तीसरे में किसी को भी बुरा कह दिया वो काबिल लानत मजम्मत की जाएगी और दायरे इस्लाम से खारिज कर दिया जाएगा। कहा कि ये मुसलमान नहीं है, ये असहाब को बुरा भला कहता है। अब मैं मिल्लत इस्लामिया से हाथ जोड़ के कहता हूं, आपकी अमीर शाम के बारे में क्या राय है? बड़ा मुश्किल मरहला है। और आप अमीर शाम के बारे में क्या कहते हैं कि जिसने हर मिंबर से आपके चौथे खलीफा को गालियां दिलवाई, दुश्मन कहलाया, उसके बारे में क्या? इसका मतलब यह है कि अगर आपकी डिक्शनरी में कोई सहाबी को बुरा कहे तो दायरे इस्लाम से खारिज, काबिले लानत। तो अमीर शाम भी जिस तरीके से औरों के लिए फतवा होगा उसी तरीके से ऐसे होगा। सलावत पढ़ें बाबा से बुलंद। क्या हुआ? वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम, बेशक वो अल्लाह ही है जिसने तुमको तुम्हारी माओं के बतनों से पैदा किया। किस आलम में पैदा किया? ला तालमूना शैया, हमने कोई किसी तरह का इल्म नहीं दिया, बेबहरा जाहिल पैदा किया। मालिक कायनात ये बता, क्या तूने सबको जाहिल पैदा किया, बेखबर पैदा किया, इलिटरेट पैदा किया? नहीं, मशीयत ने पलट के कहा खबरदार अपनी जबान को रेशमी रस्सियों से सीले, हमने सब जाहिल नहीं पैदा किए। मतलब कहा कि मैंने कुछ लोग पढ़ा के भेजे हैं। इसी कुरान ने पलट के कहा अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, रहमान के जिसने कुरान पढ़ा दिया, खलकल इंसान उसके बाद पैदा किया। इसका मतलब ये हुआ कि एक कौम ऐसी है जो वहां से पढ़ के आई है, वहां से पढ़ के आई है। वहां से कौन पढ़ कर आया है? आप कितने बड़े जाहिल के पास चले जाइए, उससे कहिए कि आप जाहिल हैं, जाहिल मुतलक हो, आपका मुंह नोच लेगा। अरे मुझसे बड़ा आलिम कौन है? आप जाहिल को जाहिल नहीं कह सकते। अब ये कैसे पता चले कि ये वहां से पढ़ के आया है और इसने यहां पढ़ा है? कैसे अंदाजा लगाएंगे कि ये वहां से पढ़ के आया है, इसने यहां पढ़ा? परेशान होने की जरूरत नहीं है, तारीख का मुतालिया कर डालिएगा। अगर कोई मिंबर पे आने के बाद सलूनी का दावा करे तो समझिए वहां से पढ़ के आया है। अगर कोई मिंबर पे आने के बाद ये कहे कि अगर ये ना होता तो मैं हलाक हो जाता, सुनने के लिए तैयार ही नहीं। सलावत पढ़िए बर मोहम्मद। इसका मतलब ये हुआ कि वहां से पढ़ा के भेजा है। वहां किसने पढ़ाया? क्या कोई यूनिवर्सिटी थी? क्या कोई कॉलेज था? कोई मदरसा था? कोई दानिशगाह था? कोई दानिशकदा था? क्या था कि किसने पढ़ा के भेजा? कौन टीचर था? कौन मौलिम था? कौन उस्ताद था कि जिसने इनको पढ़ा के भेजा? अजीज़ाने गिरामी, ये याद रखिएगा, पढ़ाने के लिए ज़बान चाहिए, ज़बान के लिए होंठ चाहिए, होंठ के लिए चेहरा चाहिए, चेहरे के लिए जिस्म चाहिए। अगर आप ये कहें कि खुदा ने पढ़ा के भेजा है तो ये यकीन जानिए हमारा जो अकीदा है, खुदा जिस्म जिस्मानियत से मुबर्रा, क्या कहने, उसके पास जिस्म नहीं है, ना आंखें हैं, ना कान है, ना नाक है, ना जबान है। ये और बात है कि किसी की जबान को अपनी जबान कह दे, किसी के कान को अपना कान कह दे, अब किसी के चेहरे को अपना चेहरा कह दे, किसी के जिस्म को अपना जिस्म कह दे। हमारा जुमला संभालिएगा। ये और बात है कि किसी की आगोश को अपनी आगोश कह दे। अलम यजिद का यतीमन फावा, ए मेरे नबी, जब हमने तुमको यतीम पाया तो पनाह न दी। हमारे जिसे तुम काफिर कहते हो, खुदा उसकी आगोश को अपनी आगोश कह रहा है। सलावत पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। वहां
किसने पढ़ाया? जाओ और जाके मालिक कायनात से पूछो, पूछ के आओ, कोई आके बतलाए कि किसने पढ़ाया, कैसे पढ़ाया। अजीजाने गिरामी, जो अब तक गया वापस नहीं आया। कौन हिम्मत करेगा कि जाके पूछे? कहा साहब इब्ने अब्बास बहुत बड़ी जात, बहुत बड़ा करैक्टर, मुफस्सिर इस्लाम, इससे बड़ी, इनको सब ने तस्लीम किया है। ये और बात है कि मौला अली ने इनको भी बड़ा तंबीह आमेज खत लिखा है कि तुमने ऐसा किया है खजाने के साथ। मैं क्या करूं कि आपकी तारीख पे निगाह नहीं है कि तुमने ऐसा भी किया। इब्ने अब्बास को भी बड़ा सख्त खत लिखा है मेरे मौला ने, जो नेचुरल बलागा में सुबह क़यामत तक के लिए मौजूद है। वो आए और आने के बाद कहते हैं, या अली ये बताइए क्या कोई जात ऐसी भी है कि जो वहां से कुरान पढ़ के आई हो? कहा है? कहा कौन है? कहा हम। कहा क्या मतलब? कहा हाँ मैं, हम पढ़ के आए वहां से। कहा या अली ये बताइए आपने कब पढ़ा? कहा जब ये कब नहीं था। कहा कि उस वक्त हमने पढ़ा, न कब था, न जब था, न तब था। कहा क्या मतलब? कहा कि उस वक्त। कहा या अली ये बताइए, पढ़ाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, कलम होना चाहिए, रोशनाई होनी चाहिए। क्या ये सारी चीज़ें थी? कहा सब था। रोशनाई भी थी, कलम भी था, तख्ती भी थी, लौह भी थी। तख्ती, लौह, लौह महफूज कुरान का लफ्ज़ है कि लौह भी थी। कहा या अली ये बताइए इसका मतलब ये हुआ कि उस पर कुरान लिखा हुआ था? कहा कुरान नहीं लिखा था, तौरेत भी थी, ज़बूर भी थी, इंजील भी थी, इस पे ये सारी चीजें लिखी हुई थी। और 135 सहीफे सिर्फ आदम पे नाजिल हुए, वो सारे के सारे इस पे मौजूद थे। जितनी आसमानी किताबें, जितने आसमानी सहीफे, सारे के सारे इस पे लिखे थे। एक मरतबा पलट के कहा या अली किसने लिखा? तो सुन लीजिए क्या कहना है। या अली ये बताइए किसने लिखा? मेरा मौला पलट के कहता है मैंने लिखा। क्या कहने? मैंने लिखा, मैंने लिखा। कहा आपने लिखा? कहा हाँ ये मैंने लिखा। कहा या अली ये बताइए जब आप लिख रहे थे कोई वहां मौजूद था? कहा मेरा भाई, नहजुल बलागा का भाई, बुखारी का बुखार चढ़ा नहीं, मेरा भाई मोहम्मद मौजूद था। क्या वो क्या कर रहे थे? कहा मैं लिख रहा था। क्या कहने? वो पढ़ रहे थे, मैं लिखता चला जा रहा था, वो पढ़ते चले जा रहे थे। कहा या अली आपने क्या लिखा? कहा तौरेत लिखी, ज़बूर लिखी, इंजील लिखी, कुरान लिखा, सारे सहीफे लिखे, सारी आसमानी किताबें लिखी। कहा या अली और क्या लिखा? अमा कसम खुदा की, जुमला संभाल लीजिएगा जो मेरा मौला कहता है कि सुनो जो अब तक हो चुका वो लिखा, और जो सुबह क़यामत तक होगा वो मैंने लिखा, वो मैंने लिखा, वो मैंने लिखा, मैंने लिखा। सलावत पढ़े बर मोहम्मद आले मोहम्मद। मैंने लिखा। कहा कि आप लिख रहे थे? कहा कौन? कहा मेरा भाई मोहम्मद पढ़ रहा था। कहा या अली ये बताइए ये सारी चीजें काहे से बनी? कहा हमारे नूर से बनी, तख्ती हमारे नूर से बनी, कलम हमारे नूर से बना, रोशनाई हमारे नूर से बनी। हम अब फिर एक जुमला अगर आप तक पहुंच गया, अब तो बड़ी परेशानी हो गई है। अगर सकील जबान हो जाए, ये हम लोग बाहर तो शिकवा करते ही हैं, अब तो आदाबी शहर में परेशानी हो रही है। मेरे मौला से सवाल हुआ कि या अली बताइए, कहा ये सारी चीजें हमारे नूर से बनी। कहा ये बताइए आप काहे से बने? मेरे मौला से पूछा कि ये बताइए आप काहे से बने? मेरे मौला ने पलट के कहा ला शै। नहीं पहुंचा, मैंने कहा नहीं, ला शै, कुछ नहीं, कुछ नहीं, किसी शय से नहीं बने हम सिर्फ मसीयत का इरादा है। अगर पहुंच रहा है जुमला फजाइल का बड़ा अहम गोशा मैं आपके हवाले कर रहा हूं। कहा या अली इसका मतलब ये हुआ कि आप अव्वल मखलूक का मैं, मेरा भाई, मुसलमानों का भाई नहीं, मेरा भाई, नहजुल बलागा का आलिम रसूल, बुखारी का जाहिल नबी नहीं, मेरा भाई। रसूल ने खुद इरशाद फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, ज़ाते परवरदिगार ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया और फिर उसके बाद इस नूर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया।
इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक अली एक मोहम्मद, एक अली एक मोहम्मद। और फिर ये 14 का नूर होते 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 वहां से चला नहीं। अज़ीज़ान गिरामी ऐसे नहीं आया कि 14 का नूर चला आया, नहीं, बल्कि 13 का नूर सैयदा को छुपा के रखा। नूर सैयदा को न किसी नबी को दिया, न किसी इमाम को दिया, न किसी वसी को दिया, न किसी रहबर को दिया, न किसी वली को दिया। मेरे नबी ये नूर नहीं दिया जाएगा, लेकिन जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तुम काबा कौसैन की मंजिलें तय करते हुए आ जाना, हम तुम्हारे हवाले कर देंगे। नूरे मासूमीन तो आ गया, 13 का नूर आ गया, नूर सैयदा नहीं आया। बहरहाल बात कहाँ तक पहुंची? हमने तुम्हें 3 नेमतें अता की। हालांकि इंसान मुजस्समा, एकदम नेमतों का मुजस्समा है। आप अगर गौर करें, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक नेमतें ही नेमतें हैं। और कसम खुदा की आपको अंदाज़ा नहीं है कितना हसीन बनाया और कितना जमील बनाया, कितना खूबसूरत बनाया। सुबह को आप चेहरा अपना शीशे के अंदर देखें तो आपको अंदाज़ा लगेगा पालने वाले ने कितना कामिल बनाया, कितना मुकम्मल बनाया, कहीं कोई बनाने में कमी। और उस अंधेरी कोठरी में बनाया जहां ज़हन बशरियत थक के चूर हो जाए, साइंस और टेक्नोलॉजी खत्म हो जाए, उस मकाम के ऊपर इंसान के नक्श निगार उभारता चला गया। क्या कहने, वाह। नक्श निगार बिल्कुल कामिल मुकम्मल बनाने के बाद इस दुनिया में इस इंसान को भेज दिया और कहा सिर्फ तुम हमारे शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। अजीज़ान गिरामी, और एक और बात आपके हवाले करूं, ये मालिके कायनात, खालिके कौनो मकान, हम सब का परवरदिगार, जो एक दफे बना देता है वो दोबारा नहीं बनाता। जो एक दफा बना देता है वो दोबारा नहीं बनाता। टूरिस्ट भी देख लीजिए, कोई भी हो, घर वाले जानते हैं 6 सेकंड पहले का कौन है, 6 सेकंड बाद का कौन है। माँ को पता है बड़ा कौन है, छोटा कौन है, घर वाले जानते हैं। हम लोग धोखा खा जाएं बाहर वाले कि इसमें कौन सा कौन है। हमें याद होगा कि आज तक ये ना पता चला हमारे अलीगढ़ के दोस्त कि चिक्की कौन है, मिक्की कौन है। मेरे क्लास फेलो थे, मैं नहीं अंदाजा कर पाया आज तक कि इसमें छोटा कौन है, बड़ा कौन है। लेकिन घर वाले जानते हैं, जिसको एक दफे बना देता है दोबारा नहीं बनाता। और आदम से लेके आज तक कोई गिन के बताए कि उसने कितने बनाए, कैलकुलेटर मिट जाएंगे, साइंस खत्म हो जाएगी, मैथ का चैप्टर ब्लैंक हो जाएगा, काली स्याही से समेट दिया जाएगा। कोई बतलाने के लिए तैयार नहीं है कितने बना दिए। जो एक दफे बनाया दोबारा नहीं बनाया। हमारा कसम खुदा की, इस कायनात के अंदर कैसे कैसे बना दिए, कैसे कैसे हसीन और जमील बना दिए। काले बनाए, गोरे बनाए, छोटे कद के बनाए, दरमियानी बनाए, बड़े बनाए। और एक साहब को तो अपने लंबे कद पे बड़ा भरोसा था, कहते थे कि मैं पहाड़ की चोटियों पे मिस्र बकरी के कूदता फिर रहा था। अगर आपने जंग ओहद पढ़ी हो जाके देख लीजिएगा, यही जुमले हैं तारीख के। कहा इतना कामिल और मुकम्मल और हर तरह के बनाए, गोरा काला, गोरे काले का झगड़ा, हाइट का झगड़ा। अमा थोड़ी सी हाइट और होती है आपकी तो कितने अच्छे लगते, हाइट कम रह गई, अमा कुछ ज्यादा लंबे हो गए। इसका मतलब मशीयत बनाती चली गई। मैंने दस्ते अदब जोड़ के अर्ज किया, पालने वाले ये तूने क्या किया। अमा सारे एक से बना देता, काले गोरे का झगड़ा, छोटे बड़े का झगड़ा, ये सारे खत्म हो जाते। मशीयत ने पलट के कहा सुन, अगर मैं सारे एक से बना देता तो कल को तू ही कहता इसके पास कोई सांचा नहीं था। एक ही सांचे में ढालता चला गया, एक ही सांचे में ढालता चला गया। क्या सुन, 14 इतने मुकम्मल बना दूंगा जो सीरत में एक, सूरत में एक, रफ्तार में एक, गुफ्तार में एक। हमारे 14 की बात छोड़िए कि जब अली की बेटी कूफे शाम में बोलेगी, कहेंगे क्या अली उठ के आगे, मैं मुकम्मल 14 ऐसे बना दूंगा। बस अज़ीज़ान गिरामी, बात को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा हूँ, समेट रहा हूँ कि मैंने
तुम्हें 3 नेमतें अता की हैं और मैं कुछ नहीं चाहता, सिर्फ तुम मेरे शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, सिर्फ मेरा शुक्रिया अदा करते रहो। इसके अलावा न मेरी कोई ख्वाहिश है, न कोई आरजू है, न तमन्ना है। ये बता मालिक कायनात, अगर हम तेरा शुक्रिया अदा करें तो तू हमें देगा क्या? मशीयत ने पलट के कहा, मेरी मखलूक मुझसे ज़बान लड़ा रही है, मैंने इतना खूबसूरत बनाया, इतना हसीन बनाया, अब क्या चाहता है? मैंने तुझे कामिल बना दिया। मालिक कायनात, तू रहमान, तू रहीम, तू करीम, कुछ और दे दे, कुछ और अता कर। कम मांग ले जो मांगना हो, मैं देता चला जाऊंगा। हाथ उठा तो सही, मेरे देने में कमी नहीं है। का मालिक बतला तू क्या देगा? मशीयत ने पलट के कहा, वफिस समाए रिस्कुकुम वमा तुआदून, मैं तुझे पाको पाकीज़ा तय्यबो ताहिर रिस्क दूंगा। मैं तुझे पाको पाकीज़ा आसमान से, वफिस समाए रिस्कुकुम वमा तुआदून, तुम्हारा रिस्क जो है वो आसमान की बुलंदियों में है, वहां से आएगा। मैं मज़ाहिर गलत फहमी का शिकार हो गया कि मेरा रिस्क जो है वो शिया कॉलेज में है। मैं समझा कि आपका कॉलेज के अंदर है, मैं समझा कि आपको एनजीसी के अंदर है। मशीयत ने पलट के कहा, नहीं, ये तेरी गलत फहमी है, तेरा रिस्क तो आसमान की बुलंदियों में है, वहां से आएगा। अब तुझे इख्तियार है, चाहे इसे हलाल करके ले ले, चाहे हराम करके ले ले, मिलेंगे 2 ही दिरहम। नहीं तवज्जो की आपने, नहीं तवज्जो की। मिलेंगे 2 ही दिरहम। तेरी किस्मत में 2 ही लिखे थे, बस फर्क ये है कि तूने इन्हें हराम कर लिया, मैं भी 2 ही देता, तूने बेची भी 2 ही की। किस्मत में 2 ही लिखे थे। इसका मतलब ये हुआ कि हम शुक्रिया अदा करें, वो रिस्क भेजे। आज की मजलिस में बिल्कुल मुतमईन होके जाइएगा, रिस्क उधर से मिलेगा। मशीयत के सामने हाथ फैलाइए, किसी दूसरे के सामने हाथ ना फैलाइए। जो मखलूक के सामने हाथ फैलाता है वो जलील खार होता है। उससे मांगिए, उससे मांगिए। वो फिर समाए रिस्कुकुम वमा तुआदून, तुम्हारा रिस्क तो आसमान की बुलंदियों में। बस बात को तमाम करने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि हम शुक्रिया अदा करें, जमीन से रिस्क आएगा आसमान से। हम शुक्रिया अदा करें, जमीन से रिस्क आएगा आसमान से। बात को और वाजे कर दूं, जनाब आदम रिस्क अदा करें जमीन से, शुक्रिया अदा करें ज़मीन से, रिस्क आएगा आसमान से। जनाब शुएब शुक्रिया अदा करें ज़मीन से, रिस्क आएगा आसमान से। जनाब इदरीस शुक्रिया अदा करें ज़मीन से, रिस्क आएगा आसमान से। जनाब नूह शुक्रिया अदा करें ज़मीन से, रिस्क आएगा आसमान से। जनाब इब्राहिम शुक्रिया अदा करें ज़मीन से, रिस्क आएगा आसमान से। जनाब ईसा शुक्रिया अदा करें ज़मीन से, रिस्क आएगा आसमान से। जनाब मूसा शुक्रिया अदा करें ज़मीन से, शुक्रिया आएगा आसमान से। हमारा नबी शुक्रिया अदा करे जमीन से, रिस्क आएगा आसमान से। अगर रास्ता बदल जाए, अगर रूट बदल जाए, कहा कि क्या मतलब? कहा कि अगर रिस्क इधर से जाए तो शुक्रिया उधर से आना चाहिए। वकाना सायकुम मशकूरा। ए फातिमा, हम तुम्हारी रोटियों के शुक्रगुजार हैं। सलावत पढ़िए बर मोहम्मद। बहुत उम्दा माशाअल्लाह। शहजादी, आप पूरे कुरान का मुतालिया कर डालिए, मालिक कायनात ने किसी का शुक्रिया अदा नहीं किया सिवाय शहजादी का, और पूरा सूरा नाजिल कर दिया, सूरह दहर। अमा कितनी बड़ी अजमत है। एक इकलौती बेटी, आज उसके बाप और बेटे की शहादत की तारीख। बस आप रो लीजिए, गिरिया कर लीजिए। आज शहजादी फातिमा के बाप की शहादत भी है और बड़े बेटे की शहादत की तारीख भी। आज का दिन आशूर से कम नहीं है। आज शहजादी अपना शिकस्ता पहलू लेके कभी बाबा का गिरिया करती है, कभी हसन को रोती है। हाँ ज़दारो, बाप के इस दुनिया से जाने के बाद अभी कफन भी मैला नहीं हुआ था, लोगों ने घर के दरवाजे पे आग व लकड़ी जमा की और आवाज़ दी, ए शहजादी, ए फातिमा, अली को घर से बाहर निकाल दो वरना हम घर में आग लगा देंगे। मैं कहूँगा शहजादी आपने क्या कहा? कहा मैंने फ़ौरन पलट के कहा कि उस घर में तुम आग लगाओगे जिसमें मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उस घर में आग लगाओगे जिसमें नबी सुबह शाम आके सलाम किया करते थे, और इसमें मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं।
बस ये कहना था, दरवाजे में आग लगा दी गई। सुनेंगे आप? कसम खुदा की, कलेजा पकड़ के सुनिए। शहजादी दीवारों दर के बीच में आ गई, फातिमा दीवारों दर के बीच में आ गई और एक मर्तबा पलट के कहा, फिजा अली की अमानत जाया हो गई, मोहसिन की शहादत हो गई। अब जब गस्से फाका हुआ तो सामने क्या देखा? मेरे मौला के गले में रस्सी का फंदा है। एक मर्तबा पलट के कहा, जालिमो अबुल हसन को छोड़ दो वरना मैं सर के बाल परेशान कर दूंगी। मैं कहूंगा शहजादी एक रस्सी एक गला, अरे जरा करबला आ जाइए, एक रस्सी 12 गले और एक 4 साल की यतीमा कभी दाना पैर उठाती है, अरे कभी बायां पैर। आप लोग मुतवज्जे हो गए, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम इमाम मजलूम में करबला के। ए बीबी, आपने एक रस्सी में एक गला देखा और आप परेशान हो गई, और अभी आपने सर के बाल परेशान नहीं किए थे जो मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद हो गई। अरे शाम गरीब आ जाइए, आपकी बेटियों के सरों से चादरें छीनी जा रही, खेमों में आग लगाई जा रही। आपकी बड़ी बेटी एक खेमे से दूसरे खेमे, दूसरे खेमे से तीसरे खेमे जाती है। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, जब मैंने पढ़ के मालूम किया ये कौन बीबी है, पता चला कि अली की बड़ी बेटी है। बस एक मर्तबा आखिरी खेमे में गई, अब जो बाहर आई अपनी पुष्प पे और सज्जाद को डाले हुए कहा कि ये मेरी अमानत, ये मेरे भैया की अमानत है। हाँ ज़दारान इमाम मजलूम में करबला, आज आप हसन का मातम करने के लिए जमा हुए हैं। शहजादी के 2 बेटे, बड़े बेटे का नाम हसन और छोटे बेटे का नाम हुसैन। अजीज़ो, रोएंगे, बहुत रोएंगे, बड़े दर्दनाक मसाइब हैं और मैं कोशिश करूंगा कि इमाम हुसैन इमाम हसन ही पे मसाइब को तमाम कर दूं। अगर आपने मेरा साथ दिया तो मैं आगे सहारा नहीं लूँगा। हाँ ज़दारो, इमाम हसन को जोधा उनकी बीवी ने कई मरतबा अशज की बेटी और इसी का बेटा भाई करबला में मोहम्मद इब्न अशज भी मौजूद था। और अशज वो है कि जो इब्न मुलजम के साथ मौला अली की शहादत में बराबर का शरीक है। मैंने आपको तीनों नाम भी बतला दिए। ये जोधा ने कई मरतबा मेरे मौला को जहर दिया, कई मरतबा, कम से कम 3 मरतबा। मेरे मौला जैसे ही जहर दिया जाता था अपने नाना के मज़ार पे जाते थे और जाके गिरा देते थे, नाना मेरा कलेजा टुकड़े हो रहा है। अपने कलेजे को नाना के मज़ार से मस करते थे, फिर वहाँ से शिफा मिलती थी, वापस आ जाते थे। अब अमीर शाम बहुत परेशान है कि कई मरतबा हमने इनको जहर दिलवाया लेकिन अब ये बच जाते हैं। मालूम क्या कि सबसे ख़तरनाक जहर कहाँ मिलेगा, किस जगह के ऊपर मिलेगा? कहा कि ये रोम के अंदर फला अत्तार की दुकान पे मिलेगा। इन्होंने फ़ौरन आदमी वहाँ भेजा और वहाँ से कहा एक शीशी जिसके अंदर 10 ग्राम जहर हलाल जो आपके आका हसन को दिया गया, जहर हलाल। रोने के लिए यही जुमले काफ़ी हैं। वो जब आदमी लेने के लिए पहुंचा और अत्तार ने वो शीशी दी तो फौरन पलट के पूछा, क्या किसी जानवर को देना है? उसे क्या पता था, अरे ये सज्जा ये अली के बेटे के लिए लिया जा रहा है। किसी को क्या मालूम था, अरे जहरा के लाडले के लिए लिया जा रहा। लाने वाला खामोश हो गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया और ला के इस जहर हलाल के लिए लिखा है उलमा ने कि ये इतना खतरनाक था, अगर इसे दरिया में डाल दिया जाता तो कई मील के परिंद, कई मील के जानवर पानी के तड़प तड़प के मर जाते, तड़प तड़प के मर जाते। और लिखा है कि अगर इसे किसी लकड़ी में टच करके भिगो के दूध देने वाली भैंस के सींग पे लगा दिया जाए तो दूध की जगह खून आने लगे। ये था इमाम हसन के लिए हैं जो जहर का इंतजाम किया गया था। वहां से जहर आया और एक गिलास पानी में इस मलूना ने पूरा जहर उड़ेल दिया, पूरा जहर उलट दिया। बस कुछ देर के बाद मेरे मौला ने पानी मांगा, ये लेकर आई। मेरे मौला ने सिर्फ 2 घूंट पानी पिए, बस उसके बाद वापस कर दिया। कहा आका और पीजिए, कहा बस तेरा 2 घूंट में काम हो गया, अब क्या जरूरत है। उसके बाद मेरा मौला मिस्ल माही के तड़पने लगा, कलेजा टुकड़े होने लगा। एक मर्तबा आवाज दी कि मेरे बेटे कासिम को बुला दो। जनाब कासिम अभी 2.5 साल का बच्चा है। अमा सोचिए, कसम खुदा की, ये 2.5 साल का बच्चा आया। एक मर्तबा हसन ने पलट के कहा, ए बेटा मेरा बाजू पकड़ और मुझे अपनी अम्मा के हुजरे में ले चल, मेरा कलेजा टुकड़े हो रहा है।
मेरा कलेजा टुकड़े हो रहा है। जनाब कासिम ने बाप का बाजू पकड़ा, लेके चले, फरवा के हुजरे के अंदर लेकर आए। और जो जैसे ही फरवा ने देखा, एक मर्तबा पलट के कहा, मेरे वालियो वारिस क्या हुआ? कहा कि बस वक्त आखिर है, जालिमा मलूना काम कर गई जिसके लिए वो कई मर्तबा कोशिश कर चुकी थी। अब वो उसकी ख्वाहिश जो थी वो पूरी हो गई, अब मेरा कलेजे टुकड़े हो रहा है। उसके बाद पलट के कहा, फरवा जाओ और जाने के बाद लगन उठा लाओ। रोएंगे इंशाअल्लाह, रोएंगे। कहा कि लगन उठा लाओ। अब जो लगन आया, उस कुछ देर के बाद मेरे मौला को के कलेजे के टुकड़े हुए, वो मुंह के जरिए से बाहर आने शुरू हो गए। अब लगन के अंदर टुकड़े गिर रहे थे। एक मर्तबा हसन ने पलट के कहा, ए फरवा, मेरी बहन को इत्तला कर दे, रात ज्यादा हो चुकी थी, मेरी बहन को इत्तला कर दो। लेकिन डायरेक्ट कोई जाके ये ना कहे कि कासिम का कलेजे टुकड़े हो रहा है, अब दुनिया से जा रहे। एक मर्तबा फरवा ने पलट के कहा, आका मैं किससे कहलवाऊं? कहा कि कासिम को बुलाओ, ये 2.5 साल का बच्चा, हम किस तरीके से मसाए पढ़ूं, ये 2.5 साल का बच्चा। कहा कि कासिम को लेकर आओ। अब जनाब कासिम जैसे ही आए, एक मर्तबा इमाम हसन ने कासिम के बाल बिखेर दिए, बाल बिखेर दिए। बाल बिखेरने के बाद बालों में राख डाल दी। बालों में राख डालने के बाद कहा कि बेटा जाओ, जाके अपनी फूफी को बुला लो, और बेटा दरवाजे पे जाके खटखटाना मत, दक्कुल बाब ना करना। कुछ ही देर के बाद मेरी बहन नमाज शब के लिए उठेगी, तुम दरवाजे पे जाके बैठ जाना। उनको जैसे ही एहसास होगा, वो फौरन दरवाजा खोल के देखेंगी। वो गया, बच्चा छोटा था, रात ज्यादा हो गई थी, गैर वक्त था, दरवाजे पे जाके बैठ गया। नींद का झोंका आया, बस जैसे ही नींद आई, बच्चे का सर दरवाजे से टकराया। एक मर्तबा ज़ैनब चिल्लाई, फिज़ा देख दरवाजे पे कौन? अरे कसम खुदा की मर जाइए, या हुसैन कहते कहते कहा, जाओ दरवाजे पे देखो कौन है। अब जो फिजा आई, क्या देखा कि एक बच्चा है, बाल बिखरे हुए हैं, बालों में राख पड़ी हुई है। फिजा ने पलट के कहा, ए बच्चे तू कौन? ए बच्चे तू कौन? कासिम ने सर उठा के कहा, अम्मा तुमने नहीं पहचाना, मैं तेरे आका का कासिम। बस जैसे ये जुमला सुना, एक मर्तबा ज़ैनब ने आवाज दी, ए फिज़ा दरवाजे से हट जाओ, मेरे भैया की खैर, मेरे भैया की खैर तो है। मैं दौड़ी हुई आई, आके क्या देखा, बाल बिखरे हुए, बालों में राख पड़ी हुई है। कहा कासिम क्या हुआ? कहा आपको बाबा ने बुलाया है। कहा इसका मतलब ये हुआ कि मेरे भैया की खैर है। एक मर्तबा अली की बेटी ने सर पे चादर डाली, बड़ी तेजी से दौड़ी हुई हसन के घर में जैसे ही कदम रखा, एक मर्तबा इमाम हसन ने पलट के कहा, फरवा लगन हटा ले, मेरी बहन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बस जैसे ही फरवा ने लगन हटाना चाहा, एक मर्तबा ज़ैनब ने चिल्ला के कहा, भाभी लगन ना हटाना, आज इसके कलेजे के टुकड़े देखोगे, कल को करबला में हुसैन की लाश। अरे कसम खुदा की मर जाइए, या हुसैन कहते कहते खुदा इन आबादों पे रहमत नाजिल करे, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। मजलिस हो गई, बस उसके बाद का लगन से लगन ना हटाना। आगे बढ़ी, पढ़ने के बाद हसन का सर उठा के अपने जानू पे रख लिया। भैया खैर? कहा कि अब मैं जा रहा हूँ, मैं अब जा रहा हूँ। मलूना काम कर गई, दुश्मन काम कर गया, बस एक छोटा सा काम और कर दो। कहा कि क्या? कहा कि मेरे भैया अब्बास को बुला लो। किस किताब से मसाइल पढ़ूं, किस मख्तल से ला के पढ़ूं? कहा कि अब्बास को इत्तला करा दो। कहा कैसे कराऊं? कहा कि कासिम को भेज दो, कासिम जाएगा, अपने चचा को बुला के लेके आएगा। कासिम से कहा कि बेटा जल्दी जाओ, अपने चचा को बुला के लेके आओ। जनाब अब्बास अपने हुजरे के अंदर आराम फरमा रहे थे। जैसे ही बच्चा दरवाजे पे पहुंचा और दस्तक दी, एक मर्तबा अब्बास को एहसास हुआ कि शायद कोई आया है, बाहर निकल कर आए। क्या देखा कि कासिम खड़े, बाल बिखरे, बालों में राख। फौरन उठ के आगे कलेजे से लगा के कहा, भैया मेरे लाल, मेरे आका की खैर तो है? कहा कि आपको बुलाया है। बस जैसे ही अब्बास ने घर में कदम रखा, एक मर्तबा चिल्ला के कहा, अरे वो कौन है कि जिसने मेरे आका को जहर दिया? हुसैन आगे बढ़े, बढ़ने के बाद बाजू पकड़ के कहा, अब्बास तुम्हें करबला चलना है।
تمہیں تو کربلا جانا ہے, تمہاری منزل یہ نہیں ہے. غسل و کفن کا انتظام ہوا. میں کہوں گا آقا حسن آپ کو کم سے کم غسل و کفن تو ملا. ہائے کربلا کی سرزمین, آپ کا بھیا 3 دن تک بے کور و کفر سرزمین کربلا پہ. رو لیجئے, گریہ کر لیجئے, ہمیں رو لیجئے, جتنا رو سکو رو لیجئے. بس چند دن بچے ہیں. آج کا دن عاشور سے کم نہیں ہے. آج کا دن 2 شہادتیں ہیں. شہزادی کبھی اپنے بابا کا پرسہ لیتی ہے, کبھی بیٹے کا پرسہ لیتی ہے. غسل و کفن کے بعد جنازہ گھر سے چلا. پر جیسے ہی چلا 300 تیر انداز مسجد میں بیٹھے تھے, ادھر سے تیر چلے, جنازے پہ آ کے تیر لگے. ایک مرتبہ عباس آگے بڑھے اور چاہتے تھے کہ یہی معاملہ ختم ہو جائے. حسین نے پھر بازو پکڑا. عباس تمہیں تو کربلا چلنا ہے, تمہیں تو کربلا جانا ہے, ٹھہرے رہو, واپس لے کے چلو. ایک مرتبہ عباس نے پلٹ کے کہا آقا یہ بتائیے کیا کسی کا جنازہ ابھی تک گھر سے جانے کے بعد واپس آیا ہے؟ کسی کا جنازہ گھر سے جانے کے بعد واپس آیا ہے؟ امام حسین بازو پکڑے ہوئے, تم کربلا چلو, کربلا چلو, تمہیں کربلا چلنا ہے. بس یہ کہنے کے بعد جنازہ جیسے ہی واپس آیا, ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی, بھیا خیر تو ہے, بھیا میرے ماجائے حسین خیر تو ہے. کہا کہ بہن زینب جنازے سے تیر نکالو, روئیں گے روئیں گے. جناب زینب آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد دریافت کرتی ہیں کہ کیا ہوا؟ کہا 300 تیر انداز, 300 تیر انداز. وہاں کھڑے ہوئے تھے مسجد میں چھپے ہوئے. جیسے ہی ہم جنازہ لے کے چلے, اگر انہوں نے زبانی ہم سے کہہ دیا ہوتا تو میرے بھیا کے جنازے پہ تیر نہ لگتے, میں جنازہ ماہانہ بابا کے پہلو میں دفن نہ کرتا. لیکن انہوں نے تیروں کی بارش کر دی. کہا کہ تم تیر نکالو. میں کہوں گا زینب آج تم حسن کے تیر نکالو. ارے کل کو کربلا میں حسین کا لاشا تیروں کے اوپر دیکھنا. بس عزادار و منزل ختم ہو گئی. میں نے مسائل مجلس تمام کر دی. اب علی کی بیٹی شام غریبہ کا جب وقت آیا, رات کی تاریکی بڑی, ایک مرتبہ سجاد سے پلٹ کے کہا کہ میں ذرا مقتل میں جا رہی ہوں. اب جو علی کی بیٹی مقتل میں گئی, کیا دیکھا؟ ایک لاشا پڑا ہوا ہے جس پہ سر بھی نہیں ہے, ارے لباس بھی نہیں ہے. کسی بہن نے اپنے بھائی کا لاشا اس طریقے سے نہیں دیکھا ہوگا. ایک مرتبہ زینب رک گئی. ارے عزادارو آپ کیسے پہچانیں گے؟ یا تو سر سے پہچانیں گے, یا لباس سے پہچانیں گے, یا ہاتھوں کی کسی انگلی سے جس میں انگوٹھی پڑی ہوئی ہو اس سے پہچان لیں گے. ہے سننے کی طاقت تو میں عرض کر دوں, بس جب میرا مولا کا سر قطع ہو گیا تو دشمن آگے بڑھے. کوئی لباس لے کے بھاگا, کس نے لباس لوٹا, کسی نے نالین لوٹی, کسی نے امامہ لوٹا. ایک بزدل نام کا ملون آیا اور آنے کے بعد اس نے مولا کی انگوٹھی اتارنی چاہی, انگوٹھی نہیں اتری. زخم اتنے ہو چکے تھے مولا کے ہاتھوں پہ, ورم آ گیا تھا, ہاتھ پہ ورم تھا, انگلی سے انگوٹھی نہیں اتر پا رہی تھی. اس نے 3 مرتبہ کوشش کی, کلیجہ پکڑ لیجیے, قسم خدا کی مر جائیے گا, بس کر. اس نے نہیں اتری. گیا اور جانے کے بعد 2 پتھر اٹھا کے لایا. ایک پتھر کو ہاتھ کے نیچے رکھا اور اوپر خنجر رکھا, اوپر سے پتھر مارا. میرے مولا کی انگلی قطع ہوئی, انگلی کے ساتھ ساتھ انگوٹھی لی اور لے کے چلا گیا. جب زینب آئی آگے کہا بھیا تیرا لباس کیا ہوا؟ ارے تیرا امامہ. اب جو ہاتھ کے اوپر نگاہ گئی, زینب نے پلٹ کے کہا بھیا تیری انگلی کیا ہوئی؟ پھر اس کے بعد پلٹ کے کہتی ہے انت اخی, کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ زینب افہام کر رہی ہے کیا تو ہی میرا بھائی ہے اس حال میں؟ کوئی جواب نہیں آیا. پھر کہا انت اخی, کیا تو میرا بھائی ہے؟ پھر کوئی جواب نہیں آیا. ایک مرتبہ بس آخری جملے ہیں, میں نے مجلس تمام کر دی. کہا انت اخی, تجھے میرے حق کی قسم کیا تو میرا بھائی ہے؟ بس جیسے یہ کہا حسین کا لاشا سرزمین کربلا سے اٹھا, بس مجلس ختم ہو گئی. بس جیسے ہی لاشا اٹھا, علی کی بیٹی نے اپنے دونوں زانوؤں کو دشت کربلا پر رکھا, دونوں زانوؤں کو دشت کربلا پہ رکھا, اور رکھنے کے بعد آہستہ سے دونوں ہاتھوں کو کمر میں ڈالا
اور یا علی کہہ کے حسین کی لاش کو اٹھا کے آسمان کی طرف کر کے کہا اے پالنے والے یہ میرا حسین اس کی قربانی قبول کر لے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیم ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے حسین اصغر ابن ابو محمد نرجس خاتون بنت احمد حسن نسیم اصغر ابن حسین اصغر کنیز سکینہ بنت شمشاد حسین شبنم فاطمہ بنت مشیر حسین کی روح کو